dear students, I am Mrs. R. Anand and welcome to the English class of Standard 10th. Today we will study Unit 2.6 World Heritage, जिसका मतलब होता है विश्व विरासत. If I ask you what is World Heritage, you will probably answer me a natural or man-made site, area or structure recognized as being of outstanding international importance and therefore deserves special protection. Can you name me some of the World Heritage sites? Yes, first is Taj Mahal in India, Pyramids of Giza in Egypt, Yellowstone National Park of United States, the Sundarbans of Bangladesh, and many more. So let's get started. World Heritage. A World Heritage Site is a site determined by the United Nations Educational, Scientific, Cultural Organization, that is UNESCO, to have significant cultural or natural importance to humanity. As such, the sites are protected and maintained by the International World Heritage Program, which is administered by the UNESCO World Heritage Committee. वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स या विश्व विरासत स्थल कौन से हैं? ये किसके द्वारा स्थापित किए जाते हैं, बताए जाते हैं? ये यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये डिटरमाइन किया जाता है कि ये स्थल जो है ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, क्योंकि उसका इम्पोर्टेंस कहाँ से किस किस तरीके से इम्पोर्टेंस है वो उसका कल्चरल एज वेल एज नेचुरल, सांस्कृतिक और नैसर्गिक दोनों तरीके से वो इम्पॉर्टेंट है. और वो किसके लिए इम्पॉर्टेंट है? ह्यूमैनिटी, इंसानों के लिए, इंसानियत के लिए. सो दैट इज़ वाई इट इज़ सिलेक्टेड और डिटरमाइंड एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट. और इसके प्रोटेक्शन का काम, इसके मेंटेनेंस का काम ये किसके द्वारा होता है? इंटरनेशनल वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम के द्वारा, जो चलाया जाता है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के द्वारा. Because World Heritage Sites are places that are significant culturally and naturally, they vary in type and include forests, lakes, monuments, buildings and cities. जबकि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स दीज आर प्लेसेस, ये स्थल हैं, तो ये जिसका कि इम्पोर्टेंस है कल्चरल एंड नेचुरली, दोनों का इम्पोर्टेंस होता है. और इसीलिए ये अलग अलग प्रकार के होते हैं. दे कैन बी फॉरेस्ट, जंगल हो सकते हैं, लेक्स, तालाब, मॉन्यूमेंट्स, कुछ स्ट्रक्चर या फिर स्टैचूज, देन बिल्डिंग्स एंड सिटीज़ भी हो सकती हैं. World Heritage Sites can also be a combination of both cultural and natural areas. For example, Mount Yungshan in China is a site with significance to human culture because it played a role in historical Chinese art and literature. The mountain is also significant because of its physical landscape characteristic. अब हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम वी सी दैट द साइट्स कैन बी अ कॉम्बिनेशन, दोनों का मिला जुला प्रतिरूप भी वो हो सकता है, जिसका इम्पोर्टेंस कल्चरल भी है एंड नेचुरल भी है. एग्जाम्पल गिवन हियर इज फ्रॉम चाइना, माउंट यूंगशान. Now Mount Yungshan has an important place in Chinese art and literature. So here we know that it has got a cultural significance, plus it has a beautiful physical landscape. मतलब इसकी जो भौतिक परिदृश्य है ये भी बहुत सुंदर, और इसका जो फीचर्स है इट इज़ मार्वलस, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, natural importance. It has not natural importance as well. So it is a combination. History of World Heritage Sites. Although the idea of protecting cultural and natural heritage sites around the world began in the early 20th century, momentum for its actual creation was not until the 1950s. In 1954, Egypt started plans to build the Aswan High Dam
to collect and control water from the Nile River. When people came to know about the importance of World Heritage Sites, what happened? The idea to protect it, to maintain it, started long back in early 20th century. लेकिन 1950s तक में इसमें मोमेंटम या इट डिड नॉट गेट एनी स्पीड, उसमें कोई हलचल या कोई उसमें तेज़ी नहीं आई थी. बट देन व्हाट हैपेंड इन 1954, समथिंग हैपेंड. इजिप्ट, जिसको हम हिंदी में मिस्र कहते हैं, स्टार्टेड प्लान्स टू बिल्ड अप आसवान हाई डैम. उन्होंने क्या प्लान किया? टू बिल्ड आसवान हाई डैम बनाने का उन्होंने प्लान किया. और वो किस लिए प्लान किया? टू कलेक्ट एंड कंट्रोल वाटर फ्रॉम द नाइल रिवर. किस लिए डैम बनाना चाहते थे? टू कलेक्ट एंड कंट्रोल द वाटर ऑफ नाइल रिवर. The initial plan for the dam's construction would have flooded the valley containing the Abu Simbel temples and scores of Egyptian artifacts. To protect the temples and artifacts, UNESCO launched an international campaign in 1959 that called for the dismantling and movement of the temples to high ground. Now, when Egypt was planning this, what happened? When it was an initial plan, if they if they could have implemented this plan, क्या हुआ होता? The valley would have flooded. उसमें पूरी जो खाई थी उसमें क्या भर जाता था? पानी भर जाता था. एंड वहाँ पे क्या था? वहाँ अबू सिम्बल टेम्पल्स एंड स्कोर्स ऑफ एंशियंट इजिप्शियन आर्टिफैक्ट्स, बहुत सारी कलाकृतियाँ हैं, पुरानी इजिप्शियन कलाकृतियाँ वहाँ पर उस वैली में पाई जाती हैं. तो अगर डैम बन जाता तो वो वैली पूरी पानी से भर जाती और ये सब कुछ तबाह हो जाता. एंड टू प्रोटेक्ट द टेम्पल एंड आर्टिफैक्ट्स, हु लॉन्च द कैंपेन? किसने सामने आके एक कैंपेन लॉन्च किया? यूनेस्को, है ना. यूनेस्को लॉन्च द कैंपेन इन 1959. और इस कैंपेन में उन्होंने क्या किया? दे कॉल्ड फॉर डिसमेंटलिंग एंड मूवमेंट ऑफ द टेम्पल्स. वो जो टेम्पल था उसको डिसअसेंबल किया, उसको उखाड़ कर एक एक उसके भाग को उठाकर ऊंचे ग्राउंड्स पे या ऊंचाई पे ले जाके उस टेम्पल को बनाया गया ताकि वो सुरक्षित रहे. The project cost an estimated $80 million, $40 million of which came from 50 different countries. Because of the project's success, UNESCO and the International Council on Monuments and Sites initiated a draft convention to increase an international organization responsible for protecting cultural heritage. Now, the whole project costed how much? $80 million to dismantle the whole temple of Abu Simbel and to take it to higher grounds and again assemble it. It all costed $80 million, and 40 million of which came from 50 different countries. They contributed for the protection of this World Heritage Site. And therefore, with this success, what happened? UNESCO and other international council on monuments and site, they drafted convention. एक उन्होंने convention draft किया. क्यों किया? To create an international organization, ताकि क्या बन सके? एक international organization बन सके जो किस बात के ध्यान रखे? जो responsibility ले for protecting cultural heritage. Shortly thereafter, in 1965, a White House conference in the United States called for a World Heritage Trust to protect historic cultural sites, but to also protect the world's significant natural and scenic site. उसके कुछ समय बाद शॉर्टली देयर आफ्टर 1965 में क्या हुआ? वाइट हाउस जो था कॉन्फ्रेंस, उसमें यूनाइटेड स्टेट्स में जो हुआ उसमें क्या बनाई गई? वर्ल्ड हेरिटेज ट्रस्ट बनाया गया. एंड व्हाई वाज इट मेड और व्हाई वाज इट कॉल्ड फॉर? टू प्रोटेक्ट हिस्टोरिक कल्चरल साइट्स एंड ऑल्सो टू प्रोटेक्ट द वर्ल्ड्स सिग्निफिकेंट नेचुरल एंड सीनिक साइट्स. सिर्फ सांस्कृतिक साइट्स या सांस्कृतिक स्थल ही नहीं, पर
जो नैसर्गिक थे और जो सीनिक साइट्स, जो ब्यूटीफुल सीनिक साइट्स थे, उनको भी प्रोटेक्ट करने का काम ये वर्ल्ड हेरिटेज ट्रस्ट को सौंपा गया। Finally, in 1968, the International Union for Conservation of Nature developed similar goals and presented them at the United Nations Conference on Human Environment in Stockholm, Sweden in 1972. Now, after some years, in 1968, what happened? International Union for Conservation of Nature, they also developed the similar goal. Now, what was the goal earlier? To protect the cultural as well as natural and scenic sites. So, this particular goal was presented in the United Nations Conference on Human Environment, which was held in Stockholm, Sweden in 1972. Following the presentation of these goals, the Convention concerning the protection of world cultural and natural heritage was adopted by UNESCO's General Conference on November 16, 1972. जब उन्होंने देखा कि ये जो ध्येय है, जो गोल्स है, दीज आर सिमिलर विच वर प्रेजेंटेड, वो सिमिलर, सो उन्होंने ये किया कि अब उन्होंने क्या किया, ये पूरा काम उन्होंने किसको दे दिया? इट वाज गिवन टू यूनेस्कोस जनरल, इट वाज गिवन टू वर्ल्ड कल्चरल नेचुरल हेरिटेज, जो था प्रोटेक्शन का काम, was given to UNESCO's General Conference on November 16, 1972. The World Heritage Committee. Today, the World Heritage Committee is the main group responsible for establishing which sites will be listed as the UNESCO World Heritage Site. The committee meets once a year and consists of representatives from 21 state parties that are elected for 6 years term by the World Heritage Center's General Assembly. अब वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी जब बनाई गई तो ये कमेटी जो है इज़ अ मेन ग्रुप, इट इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर इस्टेब्लिशिंग, ये बनाने के लिए, ये तय करने के लिए कि विच साइट विल बी लिस्टेड, कौन सा स्थल या कौन सी जगह वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्ट किया जाएगी या नामांकित किया जाएगी या लिखी जाएगी, ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी पर। एंड दिस कमेटी मीन्स वंस अ ईयर, साल में एक बार ये मिलते हैं, मीटिंग करते हैं, और इसमें कितने लोग हैं? इट कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम 21 स्टेट पार्टीज, अलग अलग 21 देशों के लोग इसके रिप्रेजेंटेटिव हैं। एंड इट इज़ दे वर्क फॉर 6 years, कितने साल काम करते हैं? 6 years बाय द देर इलेक्टेड फॉर 6 years बाय द वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर जनरल असेंबली. The state parties are then responsible for identifying and nominating new sites within their territory to be considered for inclusion the World Heritage inclusion on the World Heritage list. अब जब ये 21 स्टेट पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आइडेंटिफाइंग. ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? सबसे पहले आइडेंटिफाइंग. व्हाट इज़ आइडेंटिफाइंग? पहचानना, पहचान के अंदर नॉमिनेटिंग. व्हाट इज़ नॉमिनेटिंग? नामांकन करना, उस जगह को पहचानना कि दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हिस्ट्री एंड इट कैन बी इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड हेरिटेज साइट. सो फर्स्ट टू आइडेंटिफाई एंड देन टू नॉमिनेट, उसका नामांकन करना ताकि वो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में डाल दिया जाए. Becoming a World Heritage Site. There are 5 steps in becoming a World Heritage Site. The first of which is for a country or state party to take an inventory of its significant cultural and natural sites. This is called as the tentative list, and it is important because nominations to the World Heritage List will not be considered unless the nominated site was first included on the tentative list. Now, how does a site become a World Heritage Site? It has to go through 5 important steps. 5 important steps है कोई भी जगह को अगर वर्ल्ड हेरिटेज साइट में तब्दील करना है तो.
सबसे पहला स्टेप है, फर्स्ट ऑफ विच इज़ द कंट्री और द स्टेट पार्टी, वो देश या उस देश का रिप्रेजेंटेटिव स्टेट पार्टी का जो मेंबर है वो क्या करेगा, टू टेक एन इन्वेंटरी, वो क्या करेगा, एक सूची बनाएगा, एक लिस्ट बनाएगा ऑफ इट्स सिग्निफिकेंट कल्चरल एंड नेचुरल साइट्स, अपने अपने सांस्कृतिक या फिर नैसर्गिक जगह की वो लिस्ट बताएं, सूची बनाएगा। एंड दिस, ये सूची को बोला जाता है टेंटेटिव लिस्ट, ये इसको बोला जाता है टेंटेटिव लिस्ट। और कोई भी हेरिटेज साइट को अगर वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिस्ट में शामिल होना है तो फर्स्ट उसको कहाँ शामिल होने की ज़रूरत है, फर्स्ट उसको टेंटेटिव लिस्ट में उसका नाम आने की ज़रूरत है, तभी वो फिर आगे का स्टेप या वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनने के दिशा में आगे बढ़ सकता है। नेक्स्ट, countries are then able to select sites from their tentative lists to be included on a nomination file. The third step is a review of the nomination file by two advisory bodies consisting of the International Council on Monuments and Sites and the World Conservation Union, who then make recommendations to the World Heritage Committee. पहला जो स्टेप था टू कम इन द टेंटेटिव लिस्ट, टू बी इंक्लूडेड इन द टेंटेटिव लिस्ट, जब वो हो गया उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है द कंट्रीज़, जिस कंट्री में वो साइट है वो क्या करेगा, वो उसको नॉमिनेशन फाइल में, उस टेंटेटिव लिस्ट को कहाँ इंक्लूड करेगा, नॉमिनेशन फाइल में, नामांकन की सूची में उसको डालेगा। देन द थर्ड स्टेप इज़ अ रिव्यू ऑफ द नॉमिनेशन फाइल, इसका रिव्यू लिया जाता है बाय टू एडवाइजरी बॉडीज़, दो सलाहकार कमेटियाँ बनती हैं या बॉडीज़ बनती हैं जो कि होती हैं कंसिस्टिंग ऑफ इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स, पहली बॉडी, एंड द वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन, सेकेंड बॉडी। टू एडवाइजरी बॉडीज़ कम टुगेदर एंड दे रिव्यू इट, एंड देन उनके रिकमेंडेशन से फिर वो रिकमेंड करते, वो सिफारिश करते हैं, एंड देन द साइट इज़ लिस्टेड इन वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी। The World Heritage Committee meets once a year to review these recommendations and decide which sites will be added to the World Heritage list. The final step in becoming a World Heritage Site is determining whether or not a nominated site meets at least one of 10 selection criteria. अब जब ये सूची कहाँ पहुँच गई, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के पास पहुँच गया, नाम किसी भी हेरिटेज साइट का, वर्ल्ड हेरिटेज साइट का। नाउ दे मीट वंस अ ईयर, एक साल में एक बार बैठ के वो रिव्यू करते हैं। रिव्यू किस चीज़ का कर रहे, किस चीज़ की समीक्षा कर रहे, अबाउट ऑल दीज रिकमेंडेशंस, जो रिकमेंडेशंस उन्हें अभी तक मिले हैं 4 स्टेजेस में जो आए हैं, एंड देन दे डिसाइड, वो बैठ के फैसला करते हैं विच साइट्स विल बी, कौन सी साइट को ऐड करना, कौन से स्थल को जगह देना और कौन से स्थल को जगह नहीं देना। एंड फाइनल स्टेप इन बिकमिंग अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज़ डिटरमाइनिंग वेदर और नॉट अ नॉमिनेटेड साइट मीट्स एटलीस्ट वन ऑफ 10 सिलेक्शन क्राइटेरिया। उनका कुछ क्राइटेरिया, उनका कुछ चयन करने के मापदंड है, उसमें से 10 मापदंडों में से ये साइट एटलीस्ट शुड फुलफिल 1 क्राइटेरिया, 10 में से एक क्राइटेरिया वो नॉमिनेटेड साइट फुलफिल करना ज़रूरी है, एंड देन ओनली इट इज़ एडेड इन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। इफ द साइट मीट्स दीज क्राइटेरिया it can then be inscribed on the World Heritage List. Once a site goes through this process and is chosen, it remains the property of the country on whose territory it sits, but it also becomes considered within the international community. So when this site meets all the criteria, सारे मापदंड पे ये खरी उतरती है साइट या जगह, तो देन इट इज़ इंस्क्राइब्ड और इट इज़ इंक्लूडेड, अंकित किया जाता है उसको, कहाँ उसका नाम अंकित किया जाता है, वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में। वंस द साइट गोज़ इन द प्रोसेस, अब वो चुन ली गई है, लिस्ट में आ गई है, सो इट रिमेन्स द प्रॉपर्टी, जिस देश में वो साइट है या जगह है, स्थल है, उसी देश की प्रॉपर्टी होती है, पर उसके साथ साथ अब वो किसकी प्रॉपर्टी बन गई है, इंटरनेशनल कम्युनिटी, पूरे विश्व के लिए वो इम्पोर्टेंट हो जाती हैं।
Types of World Heritage Sites. As of 2009, there are 890 World Heritage Sites are located in 148 countries according to the map. 689 of these are cultural and include places like the Sydney Opera House in Australia and the Historic Centre of Vienna in Austria. 176 are natural and feature such as locations as the US's Yellowstone and Grand Canyon national parks. अब जब 2000 there are various types of World Heritage Sites. 2009 में जब इसका सर्वे किया गया तब तक के हमारे पास 890 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है जो कि 148 देशों में पाए जाते हैं. 689 जो है वो कल्चरल इम्पोर्टेंस से हैं या सांस्कृतिक धरोहर हम उसको बोल सकते हैं, जिसमें कि सिडनी का ओपेरा हाउस ऑस्ट्रेलिया का है या हिस्टोरिक सेंटर वियना का है ऑस्ट्रिया का. एंड 176 आर नेचुरल, नैसर्गिक है ये, जिसमें कि यूएसएस येलोस्टोन माउंटेन्स एंड ग्रैंड कैनियन नेशनल पार्क्स, दीज आर नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज. ये नैसर्गिक धरोहर है और उसको 176 2009 तक ये था नंबर. 25 of World Heritage Sites are considered mixed in nature, that is natural and cultural both, जिसमें कि एग्जाम्पल है पेरूज माचू पिचू is one of these. Italy has the highest number of World Heritage Sites, that is 44. इसमें से 25 जो है दे आर मिक्सड इन नेचर, जैसे नेचुरल भी है वो और कल्चरल इम्पोर्टेंस वाले भी है. एंड जिसका कि एग्जांपल है पेरूस माचू पिचू इन जो हमको पेरू में पाया जाता है. और इटली में सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स पाए जाते हैं जो कि 44 हैं. इंडिया हैज़ 36. इंडिया के पास कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है? 36. आउट ऑफ विच 28 आर कल्चरल, 28 क्या है सांस्कृतिक, 7 आर नेचुरल नैसर्गिक एंड 1 इज मिक्स्ड. वर्ल्ड हेरिटेज साइट. द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी हैज़ डिवाइडेड द वर्ल्ड्स countries into 5 geographic zones which include first Africa, second Arab states, Asia Pacific including Australia and Oceanic, Europe and North America, and fifth is Latin America and the Caribbeans. That means हमको यहाँ देखने को मिलता है कि द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी हैज़ डिवाइडेड द होल वर्ल्ड्स कंट्री इनटू 5 जोग्राफिक जोन्स. पहला जो है अफ्रीका, सेकंड इज अरब स्टेट्स, थर्ड इज एशिया पैसिफिक इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया एंड ओशियनिया, fourth is Europe and North America, and fifth is Latin America and the Caribbean. World Heritage Sites in danger. सचमुच वो खतरे में हैं. Like many natural and historic cultural sites around the world, many World Heritage Sites are in danger of being destroyed or lost due to war, poaching, natural disasters like earthquakes, uncontrolled urbanization, heavy tourist traffic, and environmental factors like air pollution and acid rain. हमारी जो विश्व विरासत की जगह है बहुत ख़तरे में है. क्यों ख़तरे में है? क्योंकि कुछ तो तबाह भी हो गई, कुछ ख़राब हो गई. वाई? ड्यू टू वॉर. सबसे पहला जो कारण है उसका है वॉर. वॉर मीन्स लड़ाई. पोचिंग मीन्स उसका अवैध उसका स्मगलिंग होना, उसकी चीज़ों का निकाल के बेचा जाना अवैध तरीके से. एंड सम बिकॉज ऑफ नेचुरल डिज़ास्टर जो होते हैं, अर्थक्वेक्स भूकंप होते हैं, या अनकंट्रोल्ड अर्बनाइजेशन जिसको अनियंत्रित शहरीकरण बोला जाता है, या बिकॉज ऑफ हैवी टूरिस्ट ट्रैफिक, बहुत ज़्यादा मात्रा में ट्रैफिक का टूरिस्ट का आना जो कि उस मॉन्यूमेंट को या उस साइट को ख़राब करते हैं. सम एनवायरमेंटल फैक्टर्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल लाइक एयर पोल्यूशन, उसकी वजह से उसका
पत्थर ख़राब होते हैं, मार्बल्स ख़राब होते हैं, जैसे ताजमहल के मार्बल्स का कलर वाइट से इट इज़ टर्निंग इनटू येलो बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन एंड ऑल्सो एसिड रेन. World heritage sites that are in danger are inscribed on a separate list of World Heritage Sites in danger, which allows the World Heritage Committee to allocate resources from the World Heritage Fund to that site. Now some sites which are getting destroyed or which are in danger, they are inscribed, उनको अलग से लिखा जाता है. कौन सी लिस्ट में? वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन डेंजर, ये लिस्ट में डाला जाता है ताकि वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी क्या कर सके, एलोकेट कर सके, उनको क्या कहते हैं, दे सके रिसोर्स सामान दे सके, पैसा दे सके, फंड्स दे सके, ताकि उसका रख रखाव वापस से किया जा सके, उसका मेंटेनेंस किया जा सके. In addition, different plans are put into place to protect and or restore the site. If, however, a site loses the characteristics which allowed for it to be originally included on the World Heritage List, the World Heritage Committee can choose to delete the site from the list. To learn more about World Heritage Sites, visit the World Heritage Center's website at whc.unesco.org. सो इन एडिशन, अगर मान लीजिए डिफरेंट प्लान्स आर पुट, अलग तरीके के प्लान्स रखे गए हैं, अगर उसका प्रोटेक्शन के लिए, उसके रिस्टोरेशन के लिए, साइट के, लेकिन फिर भी अगर बहुत ज़्यादा वो ख़राब हो जाते हैं ऐसे स्थल, द साइट लूजेज इट्स कैरेक्टरिस्टिक, जिसके कारण उसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिस्ट में डाला गया था, देन वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी कैन चूज़ टू डिलीट द साइट. वो लिस्ट में से निकाल सकते हैं उसका नाम, क्योंकि उसमें कुछ नहीं रहा, वो पूरा तबाह हो गया, अगर वो ख़राब हो गया पूरी तरीके से जगह, तो उसको निकाला भी जा सकता है. एंड हु डज़ दिस जॉब? वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी. अगर आपको और जानना है वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में, तो आप जाकर वेबसाइट पे विज़िट कर सकते हैं, जो है whc.unesco.org. So students, I hope you have understood this lesson 2.6. World Heritage. We have come across some new words in this lesson. Let's very quickly go through their meanings. Heritage. Heritage means that which is valued because of historical, natural, cultural importance. Second is characteristics. Characteristics means distinguishing features or qualities. Artifacts means any objects made by a human being. Dismantling means disassembling or pulling down. Inventory means a detailed list. Recommendations means suggestions or proposals. To inscribe means to print, to write, or to engrave. Allocate means to assign. Dear children, I am giving you an assignment also based on the taught portion, in which the first question says, guess the meanings of monuments, scores of, ancient, poaching, and urbanization. Question number 2 is, answer the following questions, in which the first question is, what significant aspects should a World Heritage Site have? Second, what do World Heritage Sites include? Third is, why did UNESCO launch an international campaign in 1959? And the last question is, what is the World Heritage Committee responsible for? So I hope you have understood this lesson very well. Read the whole chapter thoroughly. Learn the new meanings, new words and their meanings. Solve the assignment in your register and study. Thank you and God bless you.